My name is Rupa. I know everyone knows. Today I am here to give speech about Republic Day. Today I am going to give speech in three languages: Hindi, English, and Telugu. First, why I mentioned Hindi because my grandfather, he was a Hindi teacher, government Hindi teacher. His speeches always were in Hindi only. So today I decided to give speech in Hindi and English and a little bit in Telugu. So during my childhood days, whenever my grandfather gave speech, I felt very proud, and whenever I get a chance to deliver a speech, I hope to give similar to him. So I got all certificates in Hindi: Pradhamika, Madhyama, Rashtra, Praveshika, Visharada, Visharada, Purvartha, Uttarartha, Pravina, Purvartha, Pravina, Uttarartha, Nishna. This all credit goes to my grandfather only. I learned so many speeches and shairis and dohe, so many from my grandfather. So today I am going to take my grandfather as my inspiration, and I am going to start my speech. Ma Tujhe Salam song. It is a patriotic song written, sung by A.R. Rahman. Okay, let's get started. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. यह वह सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे। जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है। तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तुझा। माँ, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। This song is released in 1997. After the release of this song, it became beloved anthem of everyone, and it celebrates the love and affection for our motherland. Now I will explain the meaning of this song. In the first stanza, यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। इसका मतलब, what is the meaning of this stanza? I have seen so many places, but I never seen like you. I couldn't found like you. Okay? I went so many places. बहुत सारे places मैंने घूमा, फिर भी तुम्हारे जैसा कोई भी मैं पहचाना नहीं। Okay? Wherever I went, बहुत सारे places मैंने देखा, कहीं भी मैं गया, तुम्हारे memories, your memories making me to cry. Always wherever I went, I remember you. Your memories making me to cry. Second stanza, कहीं पे भी 80 नहीं 100 दिन, 100 days, I took 100 days to travel through the country. Those memories
making me to cry. माँ सबसे प्यारी, थर्ड स्टैंडर्ड, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है नहीं बस तेरा प्यार ही, का मतलब यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, यू आर द मोस्ट अडोरेबल पर्सन. ओके, इन द फोर्थ स्टैंजा, तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, फिर मुझको वो प्यार दे. इसका मतलब क्या है कि what is the meaning? I am coming back to you. So please open, stretch your arms and give me a tight hug to me. Whatever before going to, I took some love from you, right? Same love, give it to me again. Please give it to me the same love. इसका मतलब ये है कि हम भारत से बाहर जाते हैं ना रहने के लिए. कुछ लोग जॉब पर्पस किसी न किसी पर्पस यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, जापान जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं. क्या करते हैं वहाँ जाने के बाद भारत माँ को बहुत मिस करते हैं. वहाँ कहीं पे भी हम बाहर जाकर रहने पे कुछ कल्चरल इवेंट्स या कुछ ना कुछ होते रहते हैं ना. सपोज हम सोचते हैं वो भारत के बारे में कुछ प्रदर्शित किया जा रहा है, वो सोचने के बाद क्या जाते ओ भारत वो जाना है, वहाँ देखना है क्या प्रदर्शित कर रहे हैं. वो सोच के क्या करते हैं हम फॉरेन कंट्री में रहने पर भी क्या करते हैं, मिस करते हैं भारत माँ को. क्या करते हैं हम मिस करते हैं, इसीलिए जल्दी जाके वहाँ क्या हो रहा है सब कुछ भारत के प्रति सब कुछ हम देखते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, अगर इंडिया फूड कहीं पे मिलेगा क्या, इंडिया के प्रति कुछ खाने के लिए मिलेगा, क्या फूड मिल रहा है, क्या है, वो सब कुछ देखते हैं. खाने के लिए इंडिया फूड ही प्रिफर करते हैं. और कहीं पे भी जाओ क्या करते हैं, वहाँ जाने के बाद भारत माँ को इतना फील, क्योंकि हमेशा याद आती ही रहती है भारत माँ, बहुत मिस करते हैं. इसलिए क्या बोल रहे हैं, मैं फिर आपके पास ही आ रहा हूँ. देखो बचपन में हम क्या करते हैं, दशहरा हॉलीडेज या पोंगल हॉलीडेज, कुछ हॉलीडेज होते हैं तो क्या होते हैं, हम दादी के घर नानी के घर रहने के लिए जाते हैं. एक हफ्ता या 10 डेज ऐसा रहने के लिए जाते हैं. तो क्या होता है, हमें माँ के प्रति फीलिंग होता है, मिसिंग फीलिंग होता है. उसके बाद फिर दादी के पास हम खुशी रहते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर भी क्या होता है हमें बहुत मिसिंग फीलिंग होता है. माँ नहीं है यहाँ पे, ओके 4 डेज के बाद फिर मैं माँ को मिलूंगा जाऊँगा, ऐसा फीलिंग मन में रहता है बचपन के टाइम में. उसके बाद क्या होता है, हम फिर माँ के पास चलेंगे तो माँ क्या करती है, ऐसा आने के बाद हक करती है, हमें किस करती है, किस तरह अफेक्शन दिखाती है. उसी तरह हम कहीं पे भारत से हम कहीं पे भी बाहर जाएंगे तो क्या होता है, हमें मिसिंग फीलिंग होता है, वो भारत माँ नहीं, भारत के पास नहीं है, मैं भारत माँ को मिस कर रहा हूँ, ऐसा फीलिंग होता रहता है. इसीलिए क्या बोल रहे हैं, माँ मुझे खुशी और कहीं पे भी नहीं है. ओके, तुम्हारे चरणों के पास है, ओके तुम्हारे पैरों के पास ही मेरा हेवन है. ओके, मेरा दिल तुम हो, मेरा प्यार तुम हो, मेरा जन्नत तुम हो, सब तुम हो, मुझे कहीं पे भी चैन नहीं मिल रहा है. ऐसा इस सॉन्ग में भारत के प्रति, हमारे मदरलैंड के प्रति कितना प्यार है वो सब कुछ बताया गया है इस सॉन्ग में. उसके बाद क्या हुआ है, भारत को हम इतना प्यार से, मदरलैंड को इस तरह हम प्यार कर रहे हैं, मदर के प्रति इतना फीलिंग है. उस टाइम क्या हुआ है, अंग्रेजी लोगों ने भारत में घुस आए हैं और क्या किया है, कब्जा कर लिया है. भारत को क्या किया है, कब्जा कर लिया है. ओके, कब्जा करने के क्या हुआ है, कब्जा हुआ है और भारत को इतना तंग करने लगा है, घायल कर दिया है, भारत माँ को इतना कर दिया है कि मैं बातों में बता नहीं सकती हूँ, उतना घायल हो गई है. तब हम लोग चुपचाप कर बैठेंगे क्या, चुपचाप कर नहीं बैठेंगे. इसीलिए क्या हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स आ गए हैं. इसीलिए भारत माँ को उन अंग्रेजी लोगों से छुड़वाने के लिए, उनके हाथों से लेने के लिए, भारत माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स आ गए हैं. ओके, उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक शायरी बताऊंगी. ना पूछो जमाने से हमारी क्या है कहानी, हमारी पहचान है सिर्फ हिंदुस्तानी. हमारी पहचान क्या है, सिर्फ हिंदुस्तानी क्यों है. अगर हमारे बारे में पूछेंगे तो कोई बताएगा क्या, मैंने क्या किया, नंदनराम क्या किया, रूपा प्रदेश ने क्या किया, क्या बताएगा. बस अगर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक नाम ले लेंगे, महात्मा गांधी. व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशंस, महात्मा गांधी, ही इज द father of our nation. He started civil disobedience movement. Jawaharlal Nehru, he was pre-eminent fighter and he was the first prime minister of India. Dr. B.R. Ambedkar, he is the father
law minister, first law minister of our nation. Next, Dr. Rajendra Prasad. He was the first president of our nation and he was the first leader of Bihar. Pingal Venkaya, designer of our national flag. Next, Jhansi Lakshmi Bai. She was rebellion of 1857, Indian rebellion of 1857, Jhansi Lakshmi Bai. Okay, Bhagat Singh. He was the youngest revolutionist. Okay, one of the youngest revolutionist, Bhagat Singh. Next, इस तरह बहुत सारा लंबा सा लिस्ट आ जाएगा फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ले लेंगे तो इसमें तो वन ऑफ द फेवरेट इज झांसी लक्ष्मी बाई। यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं मौजूद हैं तो हम सबको झांसी लक्ष्मी के बारे में बताना चाहिए और उसके बारे में हम बातचीत भी करना चाहिए। झांसी लक्ष्मी भाई इस तरह अंग्रेजों के ऊपर कूद पड़ी है और वीरता दिखाई है कि उसको क्या बोलते हैं, वीरांगना कहकर बुलाते हैं झांसी लक्ष्मी बाई को। उसका जन्म कब हुआ है? 19 नवंबर 1828 में काशी में वाराणसी में हुआ है झांसी लक्ष्मी बाई का जन्म। पिता का नाम क्या है? मोरो पंत जी है। वो ब्राह्मण स्त्री है। बचपन में उसको मणिकर्णिका कहकर बुलाते हैं। सब लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? मन्नू, मन्नू का कहकर बुलाते हैं। क्या हुआ, वो ब्राह्मण स्त्री है ना, इसीलिए उनके माता पिता क्या करते हैं, बाहर जब भेज के पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं उस टाइम पे, तो क्या किया वो मोरपंत जी पिताजी है ना, उन्होंने घर में ही उसका विद्या ग्रहण करवाई। उस बचपन से ही उसको तलवार चलाना, घुड़सवारी करना ये सब में उसको बहुत पसंद था। उसी तरह खेले किया करती थी। तब उसके बाद क्या हुआ, 1842 को गंगाधर राव, झांसी के राजा गंगाधर राव से उससे शादी हो गई गंगाधर राव से। उसके बाद क्या हुआ, 1852 को एक बच्चा भी हुआ। उसका नाम क्या है? दामोदर राव। एग्जैक्टली, उसका नाम दामोदर राव है। उसको एक दत्तपुत्र भी है, उसका नाम आनंद राव। क्या हुआ है, दामोदर राव 4 महीने में ही मर जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, राजा गंगाधर राव को बहुत बीमारी पड़ जाती है क्योंकि बच्चा ना होने के कारण क्या होता है, वो बहुत वीक हो जाता है। इसके बाद उसका भी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, राजा ना होने के कारण क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करती है, झांसी को कब्जा करने के लिए सोचती है। झांसी को कब्जा करने के लिए सोचने से झांसी रानी चुप रहेगी क्या? अपनी झांसी को देगी क्या? नहीं ना, नहीं देगी। तो उस टाइम पे डलहौसी है गवर्नर जनरल ने इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश देता है झांसी को आक्रमण करने के लिए। तब क्या करती है झांसी रानी, लगातार 2 हफ्ता कंटिन्यूसली 2 वीक्स उन अंग्रेज लोगों से फाइट करती है और उसके दत्तपुत्र है ना आनंद राव, उसको लेकर क्या करती है, आत्मरक्षा के लिए भाग जाती है। उसके बाद क्या करती है, उसको बचपन में ही युद्ध शिक्षा, सैनिकी शिक्षा, घुड़सवारी, तलवार चलाना, आत्मरक्षा सब कुछ सीख लेती है। इसीलिए वो सीखती है। उसके बाद क्या करती है, वहां से जाने के बाद सब लोगों को, नारियों को भी शामिल करती है इस युद्ध में, शामिल करके सबको सिखाती है, युद्ध शिक्षा सिखाती है, आत्मरक्षा सिखाती है, सब कुछ एक सेना को तैयार करती है। उसके बाद क्या करती है, अंग्रेजी लोगों से युद्ध करना स्टार्ट करती है। इस तरह वो रणभूमि में कूद पड़ती है कि तलवार ऐसा चलाती है कि अंग्रेज लोग भी बहुत डर जाते हैं उसकी युद्ध वीरता को देखकर। ऐसा शौर्य, पराक्रम, वीरता ऐसा दिखाती है कि अंग्रेजी लोग चौंक जाते हैं और उसकी वीरता को देखकर गंभीर से हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस तरह भयंकर युद्ध करने के बाद झांसी लक्ष्मी बाई बहुत घायल हो जाती है। घायल होने के बाद क्या होता है, उसका भी मातृभूमि के लिए उसका प्राण न्योछावर कर देते हैं। इसीलिए उसकी युद्ध वीरता, धैर्य, पराक्रम ये सबको देखकर उसके सब लोग क्या बुलाते हैं, उसको वीरांगना कहकर उसको बुलाते हैं। इस तरह झांसी लक्ष्मी भारत के लिए बहुत कुछ किया है। झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों के ऊपर ऐसा फाइट किया। ऐसा झांसी लक्ष्मी बाई ने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर से ये सब कुछ इस तरह भारत को, उनके हाथों से भारत को हमें छुड़वाया है। इस तरह फ्रीडम फाइटर ने वो खुद नहीं लड़े, भारत के जितने भी लोग हैं उन सब में क्या भारत के लिए प्रति जो भी हमारे शरीर में देशभक्ति है उसको जगाया है। कैसे जगाया है, उनके कुछ स्लोगन्स है। क्या क्या है, महात्मा गांधी,
नेहरू, जवाहरलाल नेहरू क्या क्या किया है? आरामी हरामी। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस क्या किया है? जय हिंद। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओके, गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। ओके, सेम सुभाष चंद्र बोस क्या किया है? जय हिंद। वो स्लोगन किसने लिया है? सुभाष चंद्र बोस ने लिया है। और सत्यमेव जयते, मदन मोहन मालवीय, सत्यमेव जयते, वेरी फेमस। ओके, सत्यमेव जयते। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसने क्या किया है? लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान। लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक। मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, वो किसने लिया है? वो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद। ओके, एंड वंदे मातरम किसने? वंदे मातरम किसने लिया है? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। इस तरह बहुत सारे स्लोगन्स लेकर और बहुत सारे स्पीचेस देकर भारत में जितने भी लोग हैं उनके दिल में क्या जगाया है? उसके शरीर में, रग रग में, कण कण में भारत के लिए, भारत माता के प्रति क्या जगाया है? देशभक्ति को जगाया है। इसीलिए क्या हुआ है? सब लोग लड़ने लगे हैं अंग्रेजों के ऊपर। क्या हुआ है? उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिल गई है। कब मिल गया है? 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिल गया है। उसके बाद क्या है? वो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देश को आगे जाने के लिए, देश के विकास के लिए और देश को रक्षा करने के लिए हमारे पास संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? संविधान, हमारे पास नहीं है। अब क्या हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसको बाबा साहेब अंबेडकर भी बोलते हैं और फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसने क्या किया है? 2 years 11 months 18 days लेकर क्या किया है? उसने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है ड्राफ्टिंग कमेटी के अवसर लेकर। उसे क्या बोलते हैं? मसौदा कमेटी। मसौदा कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी को लेकर संविधान बनाया है। संविधान कब लागू हुआ है? जॉन 26 1950 को संविधान लागू हुआ है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इसीलिए हम जॉन 26 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, ठीक है, जॉन 26 1950 को इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वन ऑफ द, दिस नॉट वन ऑफ द, दिस इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आवर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, इसीलिए 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज हुआ है। ऐसा क्या लिखा है? 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज, ऐसा क्या लिखा है? इसमें क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है। लिबर्टी के बारे में, जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, फ्रैटर्निटी के बारे में लिखा गया है। ओके, लिबर्टी कांट बी डिवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कांट बी डिवोर्स फ्रॉम लिबर्टी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी कांट बी डिवोर्स फ्रॉम फ्रैटर्निटी। ओके, इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। उसके बाद इसका ये गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे का मतलब क्या है? मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिपब्लिक डे? भारत के जितने भी लोग हैं, भारत के विकास के लिए हम राजनीतिक नेताओं को चुनने के हक हमें है। हम हैं इलेक्शंस में क्या करते हैं? जो भी नेता हमें पसंद है वो देश के लिए, देश के भलाई के लिए, विकास के लिए कौन आगे लेकर जाएगा, उसी व्यक्ति को हम चुनते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिपब्लिक डे। ओके, हम खुद चुनते हैं राजनीति नेता को, लीडर को, हमें वो हक है, वही लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ऑन दिस स्पेशल डे व्हाट वी आर डूइंग? रिपब्लिक डे कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? रिपब्लिक डे में क्या करते हैं? राष्ट्रपति लाल किले के ऊपर क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, मतलब फ्लैग होस्टिंग करते हैं। उस दिन भव्य परेड किया जाता है। हमारे भारत में भव्य परेड मतलब आपको पता है ना, भारत में जो भी जितने भी लोग हैं, आर्मी है ना, आर्मी है, एयरफोर्स है, सब कुछ है ना, नेवी है, वो सब कुछ क्या करते हैं? भव्य परेड करते हैं। वो भव्य परेड कहाँ से स्टार्ट होता है? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक वो भव्य परेड स्टार्ट होता है। टोटल 5 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। ओके, इस भव्य परेड में क्या किया जाता है? देश के विकास के बारे में, प्रगति के बारे में, शौर्यता के बारे में सब कुछ का प्रदर्शित किया जाता है। भारत में जो भी होता है वो सब इस भव्य परेड में प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं? सब स्कूल्स में, कॉलेज में, गवर्नमेंट्स जो भी होते हैं ना ऑफिस,
उसके वहाँ पे क्या होते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और ये फ्लैग होस्टिंग में भी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग होस्टिंग्स आर देयर इन आवर इंडिया। 15 अगस्त को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है ना, तब जब अंग्रेजी लोग बाहर चले गए तब क्या किया है, उन लोगों का अंग्रेजी लोग का ध्वज जो होता है, ध्वज मतलब झंडा, वो झंडा को क्या किया है, नीचे लेकर आए हैं और हमारे ध्वज को ऊपर खींचा गया। इसका मतलब झंडा नीचे से ऊपर जाता है। 15 अगस्त को 26 रिपब्लिक डे में क्या होता है, लाल किले के ऊपर ही झंडा बांधा जाता है, उसे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ठीक है, 15 अगस्त में और जान 26 में जब हमें आज़ादी मिली है, उस टाइम पे कौन है, पीएम जवाहरलाल नेहरू है। तब उन्होंने एक किया है, क्योंकि उसी के साथ इसलिए 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर से ध्वजारोहण करवाते हैं और 26 को प्रेसिडेंट से ध्वजारोहण करते हैं। इसीलिए इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ फ्लैग होस्टिंग आते हैं, ध्वजारोहण और एक झंडा फहराना। ओके, 2 टाइप्स है, ध्वजारोहण, झंडा फहराना, उस तरह करते हैं। और इस तरह लाल किले के ऊपर जवाहरलाल नेहरू टोटल 17 टाइम्स 1947 से 1964 तक ध्वजारोहण किया था, टोटल 17 टाइम्स। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 15th August and 26th January। इस दिन ऑन दिस स्पेशल डे व्हाट वी हैव टू प्रॉमिस समथिंग, राइट। वो सब लोग इतने कुछ किया, इतना कुछ किया, वो फ्रीडम फाइटर ने, हमने भी कुछ तो करना चाहिए ना। इसलिए मुझे एक याद आता है कि तुलसीदास के जो है दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हल में परलय होए गो, बहुरी करे गो कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हल में परलय होए गो, बहुरी करे गो कब। इसका मतलब क्या है, जो हमें कल करना है, कल करने के लिए सोचते हैं, जो भी काम होता है ना, सपोज इफ वी हैव सम वर्क, that time what we will do, okay, it's okay, we will do it tomorrow, otherwise we can do it day after tomorrow. We shouldn't think like that. What we have to do, we have to do it today only. We shouldn't do it today, we have to do it right now only. Okay, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए गो, बहुरी करे गो कब। इसका मतलब क्या है, पल में परलय, पता नहीं क्या हो जाएगा, 1 मिनट में प्रलय आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। हम काम करने के लिए पोस्टपोन करते हैं ना, वो काम कभी भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो भी काम करने के लिए हम सोचते हैं कि वो काम उसी टाइम पे उसी वक्त में कर देना चाहिए, काम को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऑन दिस स्पेशल डे वी हैव टू प्रॉमिस दैट वी शुडंट पोस्टपोन आवर प्लान्स और एनी वर्क, इफ वी हैव एनी वर्क इज देयर ना, वी शुडंट पोस्टपोन, ओके, वी हैव टू डू इट राइट नाउ। ऑन दिस स्पेशल डे वी हैव टू प्रॉमिस दैट। एंड हमारे देश में गरीबी भी है, बेरोजगारी है, बहुत सारे, हाँ, बेरोजगारी मतलब जॉब्स नहीं है, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं है, गरीबी है और महिलाओं के प्रति अभद्रता है और किसानों की आत्महत्या बहुत सारे हो रहे हैं। ये सबको कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन के टाइम में सही नेता को हमें चुनना चाहिए, तभी थोड़ा देश की वृद्धि हो जाएगी और विकास भी हो जाएगा। इसीलिए ऑन दिस स्पेशल डे वी हैव टू प्रॉमिस दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू मेंटेन द पीस ऑफ आवर कंट्री। ओके, आई वांट टू finish my speech with one more song. Actually, I learned this poem, patriotic poem, from my grandmother. She is also a government teacher. That is सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां
रश के जीना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, मजहब नहीं सिखाता आपस में भैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन से, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. This patriotic poem is written by Muhammad Iqbal. I will explain the meaning of this patriotic poem also. In the first line, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा. इसका मतलब क्या है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं. इस कंट्रीज में all these countries, among all these countries, India is the best country. And इसको गार्डन से कंपेयर किया गया है. We all are nightingales in this garden. In second stanza, पर्वत ओ सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम. इसका मतलब क्या है कि हमारे भारत में बहुत सारे बड़े पहाड़ हैं. वो पहाड़ क्या कर रहे हैं, हम लोगों का, भारत में जितने भी लोग हैं हम लोगों का रक्षा कर रहे हैं. कैसे रक्षा कर रहे हैं, जो भी भारत को आक्रमण करने के लिए कोई भी लोग आते हैं तो वो लोग हमें उसे क्रॉस करके नहीं आ सकते, इस तरह हमें रक्षा कर रहे हैं. नेक्स्ट, गोदी में खेलती है, गोदी में खेल इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश के जीना हमारा हमारा. इसका मतलब क्या है कि भारत माँ इस इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं. कृष्णा, गोदावरी, पेन्ना, नर्मदा, ताप्ती, इंडस, सतलेज, ओके, भीम, रवि, सन, ओके, दामोदर, बहुत सारे, तुंगभद्रा, बहुत सारे रिवर्स. ये सारे रिवर्स कहाँ पे खेल रहे हैं, भारत माँ के गोदी में खेल रहे हैं. खेलने के बाद क्या हो रहा है, गुलशन है जिनके दम से रश के बिना हमारा हमारा. इस लाइन का मतलब क्या है कि इस तरह भारत माँ की सुंदरता को देखकर, पहाड़ों को देखकर, गार्डन्स को देखकर, नदियों को देखकर क्या हो रहा है, हेवन को जलस फील हो रहा है. हेवन भी क्या कर रहा है, हेवन आल्सो फीलिंग jealous of seeing Hindustan. Okay, क्या हो रहा है इसीलिए. In one movie actually, Sridevi, she was an angel. She came from heaven and she started, after seeing Hindustan, she felt very happy and she started singing. Andalalo ahom bahodayam, bhulogane namodayam, punamu pulakinche velalo, ningi nela chumpinche lalal. ऐसा वो गाना गाती है because she impressed very much. Actually in that movie she was an angel. She impressed after seeing Hindustan and she started suddenly singing this one. इसी में actually director has created the beauty of Hindustan in that song actually. Similarly, Muhammad Iqbal expresses his feeling actually. Heaven also feeling jealous of Hindustan. Last, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदी है हम. इसका मतलब क्या है कि मजहब नहीं सिखाता, नो रिलीजियस टीचर्स अस टू फाइट विद ईच अदर. ओके, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कुछ भी हमें नहीं सिखाता है कि आप सब लोग फाइटिंग करो और कहीं पे चले जाओ, छोड़ के चले जाओ. ऐसा कोई भी हमें सिखाता नहीं है. क्या सिखाता है, क्या सिखाता है, हमें मिलजुल कर रहने के लिए बोलता है. चले जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी आर अंडर राउस डेजी फाइन. हाँ, अंकिता, शी इज फ्रॉम बिहार, हर मदर टंग इज मैथिली. ओके, हरीश, हिज मदर टंग इज, he is from Uttar Pradesh, his mother tongue is Hindi. And Shubha, Shilpa, they are from Karnataka, their mother tongue is Kannada. And 306 auntie, Anjana auntie, she is from Jharkhand, her mother tongue is Bhojpuri. Okay, and few 106 Tamilians are there, their mother tongue is Tamil. Dimple, she is from Kolkata, her mother tongue is Bengali. And we are from Andhra, our mother tongue is Telugu. Brunali auntie, she is from Maharashtra, her mother tongue is Marathi. See, under this row is
हम सब लोग मिलकर कैसे रहने लगे हैं, हम सब लोग मिलकर गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, सब कुछ इसी को बोलते हैं कि इसी को कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत सारे स्टेटों में से सभी डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं, डिफरेंट डिफरेंट जातियाँ, डिफरेंट डिफरेंट संस्कृतियाँ, सब लोग स्टेट से आ गए हैं, फिर इसलिए हम सब लोग मिलजुल कर यहीं पे रहने लगे हैं। इसी को बोलते हैं यूनिटी और डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So I think in this speech I covered all the topics. I covered patriotic song, patriotic poem, why we about freedom fighters and their contributions, and why they struggle, and why we are celebrating Republic Day. What is the special? What we are doing on the day? What is the difference between the flag posting on 15th of August and 26th of Jan? And a few points about the Constitution. And unity in diversity. Actually, the theme is भारत माता के प्रति हमें कौन सा किस तरह का प्यार है, उस प्यार को हम वैसा मेंटेन कर रहे हैं। तो अंग्रेजी लोग आकर भारत को हमसे छुड़ा लिया है, उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स भारत से आए हैं, उसके बाद अंग्रेजी लोगों को हमसे भगा दिया है, उसके बाद क्या हुआ है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी वी आर मेंटेनिंग। आई जस्ट वांट टू टेल दैट वन on this special day we have to promise that we have to protect our constitution and maintain the unity of our country. So unity in diversity is there, so we have to protect unity in our country. So thank you giving this opportunity to me. Jai Hind, Jai Hindi, Jai Jawan, Jai Kisan. I